قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہریپور، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، میاں والی اور مظفر گڑھ میں پولنگ جاری۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ چھٹی کی وجہ سے صبح سے تاحال ووٹرز ٹرن آؤٹ کم دکھائی دے رہا ہے۔ تمام ڈی آر اوز اور آر اوز انتخابی عمل میں غیر جانبداری یقینی بنائیں، کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر متعلقہ افسران کو سخت تعدیبی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی واضح ہدایت جاری۔ ضمن انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی مقبولیت کا امتحان۔ مجموعی طور پر 105 امیدواروں میں تگڑا مقابلہ، 82 آزاد امیدوار بھی میدان میں۔ این اے 18 ہریپور میں عمر ایوب کی اہلیہ اور آزاد امیدوار شہناز، نون لیگ کے بابر نواز سمیت پیپلز پارٹی کی ارم فاطمہ کے درمیان مقابلہ۔ حلقہ این اے 129 میں 17 امیدوار مد مقابل۔ نون لیگ کے میاں محمد نعمان کا حماد اظہر کے بھانجے آزاد امیدوار ارسلان احمد سے مقابلہ۔ این اے 185 ڈی جی خان میں نون لیگ کے محمود قادر لغاری اور پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسا میں کڑا مقابلہ۔ این اے 96 فیصل آباد میں نون لیگ کے طلال بدر چودھری کا آزاد امیدوار نواب شیر سے مقابلہ ہونے کا امکان۔ فیصل آباد کے حلقے میں 104 میں سے نون لیگ کے راجہ دانیال اور 4 آزاد امیدوار میدان میں۔ ضمن انتخابات کے لیے 2792 پولنگ اسٹیشنوں میں سے 408 انتہائی حساس اور 1032 حساس قرار۔ مجموعی طور پر پنجاب پولیس کے 20,000 سے زائد افسران اور اہلکار بھی مامور۔ سیکیورٹی کے لیے پاک فوج بھی تعینات۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق، دفعہ 144 اور اسلحہ پابندی کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ امن و امان یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کئی مقامات پر فلیگ مارچ۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ضمن الیکشن ذرائع ابلاغ کے لیے ضابطہ اخلاق جاری۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کوئی بھی میڈیا ادارہ پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری نتائج پولنگ کے اختتام کی کم از کم 1 گھنٹے بعد سے نشر کرے گا۔ ایسے نتائج کے اشاعت نشر کے ساتھ یہ واضح ہوگا کہ یہ نتائج غیر حتمی اور جزوی ہیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں کمیشن متعلقہ حکام سے مناسب تعدیبی کارروائی کے لیے لازماً رجوع کرے گا۔ ایشیا رائزنگ اسٹار کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان کا بنگلہ دیش سے مقابلہ۔ پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش بھارت کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا۔ دونوں کپتانوں کا فائنل میں جیت کی حکمت عملی کا دعویٰ۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ سہ ملکی ٹی20 سیریز پاکستان کی مسلسل دوسری جیت۔ تیسرے میچ میں پاکستان کی سری لنکا کو 7 وکٹوں سے شکست۔ قومی ٹیم نے 129 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔ صاحبزادہ فرحان کی 45 گیندوں پر 80 رنز کی جارحانہ اننگز، سائم 20، بابر اعظم 16 اور کپتان 0 پر آؤٹ ہوئے۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 128 رنز بنائے۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارے کے حادثے کا الزام امریکہ پر۔ بھارتی گودی میڈیا کی ایک بار پھر اپنی حکومت کی نااہلی چھپانے کی کوشش۔ جنرل ریٹائرڈ بگچی اور ارنب گوسوامی نے حادثے کی ذمہ داری امریکی GE 404 انجن پر ڈال دی۔ ارنب گوسوامی کے مطابق انجن کی تاخیر سے فراہمی نے بھارتی دفاعی تیاری میں خطرناک خلا پیدا کیا۔ جنرل بگچی کا دعویٰ ہے کہ $1 ارب کی ادائیگی کے باوجود بھارت کو صرف 2 انجن ملے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ پر ملبہ ڈالنا حقیقت نہیں بدل سکتا۔ تیجس کا حادثہ میک ان انڈیا کے کھوکھلے دعووں اور بھارتی دفاعی صنعت کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ افغان طالبان کی ہٹ دھرمی برقرار۔ پاکستان کی سرحدی بندش سے افغانستان کو شدید معاشی نقصان، مقامی معیشت پر منفی اثرات نمایاں۔ پاکستان سے سرحدی بندش سے افغانستان میں بنیادی اشیاء کی قیمتیں غیر معمولی حد تک بڑھ گئیں۔ قیمتوں میں اضافہ عام لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ بنیادی غذائی اشیاء اب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ غریب کیسے گزارا کرے؟ افغان عوام کا شدید رد عمل۔ ہندوتوا بیانیہ اقلیتوں کے لیے شدید خطرہ۔ خالصتان تحریک کے رہنما نے مودی کی فاشسٹ سوچ کا پول کھول دیا۔ مسلمان دشمنی میں مودی نے صدیوں پرانی مسجد کی شہادت کو قومی تماشا اور سیاسی تہوار بنا دیا۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کہتے ہیں کہ 25 نومبر کو دہشت گرد مودی رام مندر میں انتہا پسند ہندوتوا کا ایجنڈا لگا رہا ہے۔ پنجاب کو بھارتی قبضے سے آزاد کرا کے خالصتان بنا کر رام مندر کی جگہ دوبارہ بابری مسجد بنائیں گے۔
वफाकी सतह पर साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वजारत IT ने साइबर सिक्योरिटी एक्ट का इब्तदाई मुसविदा तैयार कर लिया। दस्तावेजात के मुताबिक अथॉरिटी अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साइबर सिक्योरिटी इकदाम तजवीज़ करेगी। साइबर सिक्योरिटी एक्ट स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए भेज दिया गया। नादरा FBR टेलीकॉम के डाटा को अहम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करार दे दिया गया। पाकिस्तान के IT शोबे में इनकलाबी कदम। SIFC से मुसाबकती डिजिटल नेशन के क़याम के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान में सबमरीन केबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीख साज़ तौसी। पाकिस्तान CME V6 सबमरीन केबल सिस्टम से मुंसलिक 19,200 किलोमीटर तवील हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क से यूरोप से मुंसलिक। मुल्क में मजमूई तौर पर 6 सबमरीन केबल्स पहले से फ़ाल। मजीद 3 नई केबल्स की शमूलियत खुशाइंद। इक़दाम ट्रांस वर्ल्ड का मजीद 4 टेराबाइट फी सेकंड इजाफी सलाहियत शामिल करने का ऐलान। पाकिस्तान में मौजूदा नस्ब शुदा इस्तिदाद 13.2 टेराबाइट फी सेकंड, जबकि नए लिंक्स के बाद मजीद इजाफा यकीनी। मजीद बैंडविड्थ से सारिफीन को बेहतर वीडियो स्ट्रीमिंग, मुस्तहकम कनेक्टिविटी। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस, 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा एमुनेशन बरामद। बन्नू को बड़ी तबाही से भी बचा लिया गया। आबशार चौक में दहशतगर्दों ने 10 किलो वजनी IED बम नस्ब किया था। BDS ने बर्वक्त कार्रवाई करके कामयाबी से नाकारा बना दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर कभी तनकीद नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वजाहत। कहा, अमन की खातिर विफाक का साथ देंगे। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। उनके खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पुलिस के लिए जदीद आलात की खरीदारी की मंजूरी दे चुके। विफाक वाजिबात दे तो पुलिस और सेहत समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। मेरा भाई भी करप्शन में मुलविस हुआ तो उसे सजा मिलनी चाहिए। वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमला हुआ। आप क्रिकेट खेलते रहे। 13 में खुले आम मंशियात की फरोख्त जारी है। अपने हलके में आपने क्या कार्रवाई की? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुलाकात में सहाफ़ियों के सख्त सवालात। सुहेल आफरीदी की ज़बान लड़खड़ाती रही। सीधा जवाब देने के बजाय वज़ीर आला सिर्फ मुबहम कहानियां सुनाते रहे। सहाफ़ियों के सवालात का सुहेल आफरीदी के पास जवाब न था। लाहौर में जमात इस्लामी के इज्तिमा का तीसरा और आखिरी रोज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि किसी जागीरदार या सरमायादार का निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। लाहौर में इज्तिमा से खिताब। जमात इस्लामी के टाउन्स चेयरमैन फोकस मीनार पाकिस्तान पर ना रखें। इवेंट लाहौर में हो रहा है, ट्रेनें यहां से जा रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नईमुर रहमान वहां चले गए, तस्वीरें आज भी यहां लगी हैं। लाहौर में नईमुर रहमान का कोई पोस्टर नजर आ जाए फिर बताइएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत खत्म। पाकिस्तान ने 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। विफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में तरामीम पर भी इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ब्रिसल से पाकिस्तान आते हुए सऊदी अरब का दौरा। वज़ीर ख़ारजा ने मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी, नमाज अदा की और सलाम पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान और कौम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इससे कबल इसहाक डार ने ब्रिसल्स में हम मनसबों और आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें की। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया। कराची में एक और लड़की डेंगू बुखार से जाँ बहक। डेंगू से अमवात की मजमूई तादाद 38 हो गई। शहर कायद में गुज़िश्ता रोज़ ज़िला ईस्ट से 22 साला आफरीन मंसूर की डेंगू बुखार से मौत रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत के मुताबिक कराची से 2804 डेंगू टेस्ट किए गए, जिनमें से 215 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई।
पंजाब की फजा बदस्तूर आलूदा कसूर 501 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर बन गया। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक खानेवाल में AQI 365 और लाहौर में 353 रिकॉर्ड। आलमी वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है। पहले नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। कराची छठे नंबर पर है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई। कराची के दर्जे हरारत में आज से मजीद कमी मुतवक्की। रात में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद रोज तक दिन के औकात में मौसम खुश्क, रात में खुनकी रहेगी। दिसंबर के वस्त से दिन और रात के दर्जे हरारत में मजीद कमी होगी। 24 घंटों में कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची वालों को मौसम सरमा की हवाएं रास्त आईं। खुश्क हवाएं चलते ही जल्दी अमराज पड़ने लगे। एलर्जी, खुश्क जिल्द, एक्जिमा जैसी जल्दी बीमारियों ने शहरियों को मुतासिर करना शुरू कर दिया। यौमिया मुतादिद शहरी जिल्द अमराज की शिकायत के साथ अस्पतालों का रुख करने लगे हैं। जल्दी अमराज से बचाव के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, माहिरीन का मशवरा। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजस की तबाही के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ गई। तैयारा साज कंपनी एरोनॉटिक्स की शेयर प्राइस गिर गई। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली और हुकूमत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय एयर चीफ की बरतरफी का भी मुतालबा। तैयारा हादसे में फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी के इम्कान की तहकीकात जारी। गलती पायलट की थी या तैयारे की मशीनी खराबी? क्या पायलट ने फ्लाइंग प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की? फैसला तहकीकात के बाद होगा। दुबई एयर शो मुंतज़मीन के मुताबिक एयर शो में फ़ज़ाई करतब की 300 फीट बुलंदी लाजमी थी। तहकीकात की जा रही हैं कि क्या भारतीय तैयारा 300 फीट कम अज़ कम ऊंचाई से नीचे आया था। फलस्तीनियों पर मुसलसल सहूनी फौज के हमले जारी। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी की मसरूफ शाहरा पर इसराइली फौज के गाड़ियों पर खुदकुश ड्रोन हमले, 11 फलस्तीनी शहीद जबकि 20 जख्मी हो गए। दिरुल बलह में इमारत को भी निशाना बनाया गया। 10 अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में 318 फलस्तीनी शहीद जबकि 788 जख्मी हो चुके। हमास ने अमेरिका और जंगबंद के जामिन ममालिक से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। भारत और मुक्ति बहानी की बर्बरियत से 1971 में मासूम बिहारियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तान। 71 की पाकिस्तान से जंग में भारत की रियासती दहशतगर्दी तारीख का स्याह बाब। भारत ने मुक्ति बहानी जैसे दहशतगर्द गिरोह को मुहिब वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। बिहारी कम्युनिटी के शेख मुकीम जैसे बहादुर बिहार अफराद ने पाकिस्तान की इज्जत और अजमत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। शेख मुकीम कहते हैं मुक्ति बहानी और भारतीय फौज ने बिहारियों की अमलाक और आबादियों पर हमला करके दरंदगी से कत्लेआम किया। मशरकी पाकिस्तान के 17 में से 14 अजला में रिहाइश पजीर तमाम बिहारियों को शहीद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान पंचगोर में स्पोर्ट्स वीक का शानदार इनेकाद। इवेंट का एहतमाम FC बलूचिस्तान साउथ के ताउन से किया गया। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज और स्लो रेस समेत मुतादिद मुकाबले। तलबा का स्पोर्ट्स वीक में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहिरा। इख्तितामी तकरीब में कमांडेंट पंचगोर राइफल्स ने जीतने वाली टीमों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए। वाइस चांसलर और फैकल्टी का FC बलूचिस्तान साउथ की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर।